پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آج اس دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس جنریشن کو یہ بتانا ہے کہ یہ پاکستان بنا کس لیے تھا, یہ قربانیاں دی کس لیے کی تھیں. اور تیسرا چیلنج, وہ چیلنج کردار سازی کا ہے. پاکستان میں جتنی کرپشن ہوتی ہے, چیئرمین نیب کی طرف سے یہ فگر دی گئی کہ روزانہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. وہ کرپشن کون کرتا ہے؟ کیا کوئی ریڈی بان کرتا ہے یا کوئی بے پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے؟ ان تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. تو اس نسل کی ایک ایسی تربیت کرنا کہ وہ ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کرنے کو اپنا اولین فریضہ سمجھے, اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کانسیپٹ اسکول کی ٹیم کے سامنے, اساتذہ کے سامنے, اس کے ہیڈ آفس کے سامنے ہیں, لیکن ان سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور آپ لوگ کھڑے ہیں. آپ لوگ کھڑے ہیں, آپ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ اساتذہ یہ رول پلے کریں گے کہ یہ اساتذہ ان کے اسپرچل پیرنٹس بھی ہیں, اور والدین یہ رول پلے کریں گے کہ والدہ کی گود پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے, تو والدین اساتذہ ہیں. تو انشاءاللہ تعلیم کے اس میدان میں ان بچوں کے ذریعے ہم اس ملک کو, اس پاکستان کو, اس پاک وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. شاید یہ باتیں ہواؤں میں باتیں ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے یہاں سے گئے, باہر سیٹلڈ ہو گئے, بہت اچھا مستقبل ان کے سامنے تھا, لیکن وہ پاکستان کے لیے واپس آئے. ان بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ آپ کا یہ پاکستان ہے, اس کو بنانا ہے. کل پرسوں ملالہ یوسف زیائی انہوں نے کہا کہ خواتین اس لیے تعلیم حاصل کریں کہ ان کو روزگار ملے. ہم ایسے چھوٹی سوچ بچوں کو نہیں سکھانا چاہتے کہ روزگار کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے. ہم نے تعلیم بچوں کو اس ملک کے لیے, اس دین کے لیے, اس ملت کے لیے دینی ہے. اور اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جیتی جاگتی مثالیں آپ کے پاس یہاں موجود ہیں. یہ ہمارے پاس ہال میں ہمارے کانسیپٹ اسکول کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نصر اللہ گوریا صاحب موجود ہیں. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو ان کے پاسپورٹ پر 21 ممالک کے ویزے موجود تھے. کسی ملک کو اپنے کیریئر کے لیے چوز کر سکتے تھے, لیکن اگر یہ فیصلہ کیا پاکستان کو اپنا کیریئر بنائیں گے, اس ملک کی, اس مٹی کی خدمت کریں گے, تو ہم نے ایسے بچوں کو اس وطن کے لیے تیار کرنا ہے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ جنریشن تیار کر دیں گے, کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی. جب ہم ٹھیک ہوں گے, ہم اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے نقشے قدم دیں گے. منزلوں کے سوراخ ہمیں شکست نہ ہوگی بتائے جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہمیں اپنے پاکستان کو بہت آگے لے کر جانا ہے اور اپنے بچوں کو اس نظریے سے ان چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. Allah is the creator for everything. He is the guardian over everything. Unto him belong the keys of the heavens and the earth. No creature is there crawling on the earth, but his provision rests on Allah. میں اس موقع پہ درخواست کروں گا ہمارے بہت ہی معزز مہمان. میں اپنی گفتگو میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایسے لوگ, ہمیں ایسے سوسائٹی میں ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے جو پاکستان کو کیریئر بنائے. پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا پاکستان بھر میں. نیپال میں پاکستان کے ایمبیسیڈر رہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں ایز اے ایمبیسیڈر جانے سے علاوہ ایجوکیشن کو اپنا کیریئر بنا سکتے تھے. اپنے فیلڈ میں انٹرنیشنل جرنلز میں بہت سارے جرائد میں ان کے ریسرچ پیپرز شائع ہوئے. ذکیہ یونیورسٹی کے ایکس ایکٹنگ وائس چانسلر
हमारे उस्ताद बहुत ही मोहतरम हमारे ऊपर शफकत करते हैं जब भी टाइम हमसे मांगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब डॉक्टर अयाज मोहम्मद राना साहब से कि वो तशरीफ लाएंगे और आप भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। ये सब टीचर्स के लिए भी है और उस बेस्ट टीचर के लिए है। पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन में अगर बच्चे लोग भी खड़े होकर इस्तकबाल करें जिनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर अयाज राना साहब। इस स्कूल से वाबस्ता असातिज़ा, वालिदैन और इंतहाई अजीज तलबा और तालबात, सबसे पहले तो मैं एक वजाहत छोटी सी कर दूं। सोहेब साहब ने मेरा नेपाल के एम्बेसडर नहीं था, मैं वहां पे मिनिस्टर था एम्बेसी में, नेक्स्ट टू एम्बेसडर। और वहां पे एक चेयर थी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, उसको भी देखता था। ये इंतहाई खुशी की बात है कि आज के इस पुरआशोब दौर में जब हुकूमत ने प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन तक ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम इस अंदाज से करे कि वो बेहतरीन इंसान भी बन सके और बेहतरीन प्रोफेशनल बन सके, जिनकी वाबस्तगी उस मुल्क की आइडियोलॉजी से हो, जिनकी वाबस्तगी उस मुल्क के मजहब से हो, जिनकी वाबस्तगी उस मुल्क के कल्चर, तहजीब और सकाफत से हो, ऐसे बच्चे तैयार करें। और कायदे आज़म का ख्वाब ये था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन होगी और फ्री एजुकेशन होगी, और ये उनका और वो बामकसद एजुकेशन होगी। लेकिन अपनी लूट मार के इस कदर वो मशगूल हुए कि उन्होंने ये जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दी। प्राइवेट सेक्टर इस मैदान में आया तो दो किस्म के लोग आए। एक वो लोग जो तालीम फरोशी के जरिए से अपने दौलत के अंबार को मजीद बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुझे फख्र है कि कॉन्सेप्ट स्कूल उन स्कूलों में से है कि जिनका मतमा नजर दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कौम तैयार करना है कि जो कौम, ऐसे बच्चे तैयार करना है जो मुसलमान भी हो और अच्छे इंसान हो और अच्छे प्रोफेशनल्स हो। ये एक शदीद जरूरत थी कि यहां पे ये लोग अपना कैरियर और कई जराए से बना सकते थे, लेकिन इन्होंने एजुकेशन को अपना कैरियर बनाया। All the battles, all the bloodshed, everything has led to this. What are you? बदलती दुनिया में भी
तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ,
बिखरे हुए शख्स हो, टूटे हुए जमीन लगते हो, एक कटोरे की कमी है वरना खानदानी फकीर लगते हो। अपने अगले शायर को एक शेर सुनाने दो। पढ़े। साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है, साल भर मुंह नहीं धोता तेरा अपना मुंह है, और इस शुगर पर माहूर भी और मशहूर भी है। ईद का दिन है तुझे आज नहाना होगा, ईद का दिन है तुझे आज नहाना होगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये शेर था। मैं अपनी अगली शायरा के बारे में बस इतना कहना चाहूंगी, इनके आने से होगा हकीकत का बोलबाला, इनके आने से होगा हकीकत का बोलबाला, इनके शाह भी होंगे बहुत आला, वतन से मोहब्बत का वो देंगे हवाला, हाजिर है आयशा वतन वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या है? बांग्लादेश ना हिंदुस्तान ना हम चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको, हम वो दीन वाले हैं। और क्या है? इरशाद इरशाद। नहीं तेरा नसेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नसेबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और क्या है? इरशाद इरशाद। अपने ही वतन के जैसे अनजान है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान है। अपने ही वतन के जैसे अनजान है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान है। हर वक्त देना है इनको मोहब्बत का सबूत, जबकि पाकिस्तान हमारी जान है। मैं अपने अगले शायर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर नजी तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। हो सकते हैं आप तवाना, हो सकते हैं आप तवाना, काम करें बस 2 रोजाना। कौन से 2 काम? रोटी खा के खुश हो जाना, खुश हो के फिर रोटी खाना। हमको बताओ तुमको यहाँ से कहाँ मिला, हमको बताओ तुमको यहाँ से कहाँ मिला, बरसों से ढूंढते आ रहे हैं ये बेघर कहाँ मिला। तारीफ इनकी क्या करे लाजवाब है, सब लोग पूछने लगे जबरदस्त कहाँ मिला। केसरी साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। वालेकुम अस्सलाम। अब हम शेर पढ़ती। या हबीबी दौर कैसे आए तुम, वाह वाह, लोग हैं चारों तरफ घबराए तुम, वाह वाह, आमदनी ऐसी हम शर्माए तुम, वाह वाह, और ऐसे शर चुपराए तुम, वाह वाह, उड़ गए बहुत जैसे तोता तुम, वाह वाह, या हबीबी आजकल क्या। This clock is brought to you by बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच कश्मकश में कौन किससे तगड़ा तुम, बीच शोहर यूं ही रगड़ा तुम। अब हम जाती। शुक्रिया। मैं अपनी अगली शायरा को बुलाना चाहूंगा। चमचम बेगम तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान के हवाले से एक नज़म पेश करती हूँ। नज़म नजरिया पाकिस्तान। छम छम करती बागा से मैं आई पाकिस्तान, छम छम करती बागा से मैं आई पाकिस्तान। मां मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे
तुझसे किया है प्यार। मोहतरमा आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये नजम पाकिस्तान के लिए बोल रही हूँ। छम छम करती वागा से में आई पाकिस्तान, छम छम करती वागा से में आई पाकिस्तान। मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। रावी में बहती जाऊंगी, ब्रह्मा को याद आऊंगी, प्रार्थना को कर जाऊंगी, मेरा है ये ईमान। पाक वतन में लाखों राज्य में इकलौती ही, सुबह में लस्सी शाम में सरसों रात में खाऊंगी, चाहे लगे बहुतान। छम छम करती वागा से में आई पाकिस्तान, छम छम करती वागा से में आई पाकिस्तान। मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपने अगले शायर को बुलाना चाहूंगी। ऐसे रंगीला तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज्यादती है। वाह वाह वाह। पाउडर के 2 डब्बे रोज लगाती है, ये ज्यादती है। वाह वाह वाह। और चेमन की भी होकर ये शर्माती है, ये ज्यादती है। इस पर पोशाकें भी फिर बनवाती है, ये ज्यादती है। वाह वाह। कार पर हो तो कार खुद फरमाती है, ये ज्यादती है। वाह वाह। बस पर हो तो बस की बस हो जाती है, ये ज्यादती है। वाह वाह वाह। चाइना के मोबाइल में इतराती है, ये ज्यादती है। वाह। लोड हमारा कार सुबह कड़काती है, इसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है। वाह वाह। ये ज्यादती है। हालांकि ये मसला मेरा जाती है। शुक्रिया। वाह वाह। मैं अपनी अगली शायरा को बुलाना चाहूंगा जो हमेशा उलझन का शिकार रहती हैं। उलझन बाबा तशरीफ लाई। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में साथ हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क।
एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान आपने यहाँ देखा होगा कि ये बच्चे जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, पाकिस्तान के साइंसदान किसी से पीछे नहीं है, पाकिस्तान के प्रोफेशनल किसी से भी पीछे नहीं है। बल्कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान इस दुनिया की एटमी ताकत है। इसको एटमी ताकत किसने बनाया? पाकिस्तान के बच्चों ने साइंसदान बन के वो आगे बढ़े और इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान जो इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है, वो उन्हीं तालिबे इल्मों की बुनियाद पर है जिन्होंने बचपन से अच्छे पाकिस्तानी होने का सबक भी सीखा, अच्छे मुसलमान होने का सबक भी सीखा, और उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत सीखी, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के लिए काम किया, और आज पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को तय कर रहा है। तो ये स्कूल, कंसेप्ट स्कूल, यकीनन इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए एक नेमत है, जो एक बेहतरीन एजुकेशन जो है वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं। और ये बेहतरीन एजुकेशन जो है वो यकीनन जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग, तमाम साइंसेज के बच्चों के उनके लिए तैयार करते हैं, वहाँ पे इनको अच्छा पाकिस्तानी बनाते हैं,
अच्छा मुसलमान बनाते हैं और ये इंतहाई जरूरत है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं। डॉक्टर बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। अगर वो डॉक्टर अच्छा मुसलमान होगा, अच्छा पाकिस्तानी होगा, तो यकीनन वो रहमत होगा। अगर वो अच्छा पाकिस्तानी न बन सका, अच्छा मुसलमान न बन सका और वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बन गया, तो फिर सूरत हाल ऐसी होती है कि ये कल की बात है। हमारा एक माली, वो उसकी बीवी बीमार पड़ गई। वो यहां सिविल हॉस्पिटल में गया, उसको कोई दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद वो नेशनल हॉस्पिटल में गया, वहां उसको एडमिट करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो मेरे पास आया। मैंने एक अखबार के यहां पे रेजिडेंट एडिटर को फोन किया कि ये सूरत हाल ऐसे दाखिल करवा दे। उसने कहा जी मेरा वो जा रहा है रिपोर्टर वहां पे। वहां जाने के बाद उसने कहा जी कल 11 बजे खातून मर रही है, लेकिन वो कल 11 बजे दाखिल होगा। उसके बाद वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में मैंने उसका इंतजाम किया और वो चला गया। यानी जब डॉक्टर वो अपने मजहब से वाबस्ता नहीं है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो पाकिस्तान के लोगों के काम नहीं आ सकता। तो कॉन्सेप्ट स्कूल यकीनन बेहतरीन लोग पैदा करने के लिए है, और ये मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए बना था। उस पे कायम रहने पे कायम रह सकता है। अगर हम इस मुल्क में यकीनन बलोची, पठान, सरहदी, पंजाबी, सिंधी इसमें तकसीम हो गए, तो ये मुल्क तरक्की की राहों पे गामजन नहीं हो सकेगा। ये उसी वक्त गामजन होगा कि ये पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। 97-98% मुसलमान यहाँ पे। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जब हम अपने मजहब के मुताबिक अपने बच्चों की तालीम करेंगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उन तक मुंतकिल कर देंगे। हम कुरान पाक के और कुरान हकीम की तालीमात को उन तक मुंतकिल कर देंगे। उनकी तालीम और तरबियत इस अंदाज से होगी कि वो सही तरीके से अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे पाकिस्तानी बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे प्रोफेशनल बने। वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो इस रीजन के लिए, वो इंसानियत के लिए रहमत का फरिश्ता होंगे। थैंक यू।